So hello everyone. Today we will see the divisions of mediastinum and important malignancies or the masses which can occur in various division of mediastinum. So I will draw a diagram of division of mediastinum. This is manubrium sterni. This is your sternum. These are vertebrae. So this is anterior and this is posterior. Now this is diaphragm and this is thoracic inlet. So this whole portion is posterior to the sternum and anterior to the vertebrae is whole mediastinum and above the diaphragm, right? So in the middle there lies the heart, and this is arch of aorta, ascending aorta, arch of aorta and descending aorta. So from the lower boundary of manubrium sterni we draw a line, an hypothetical line which usually transverses the joining of aorta to the heart. So the above portion is superior mediastinum. Superior mediastinum. Anterior to the heart is anterior mediastinum. Heart lies in the middle mediastinum. And posterior to the heart is posterior mediastinum. Simple. So four main divisions: superior mediastinum, superior to the heart; anterior mediastinum, anterior to the heart; posterior mediastinum, posterior to the heart; and heart itself lies in the middle mediastinum. Right? So main divisions are covered. I'm not telling you the each and every anatomical details like anterior posterior division. I'm not confusing anyone, right? मिडिल मीडियस्टिनम में और भी स्ट्रक्चर्स होंगे ना फिर Yes. I'm just telling you the in the brief what's the middle mediastinum. This structure is esophagus. Esophagus. This is trachea, and trachea dividing here. So the bronchus lies in the middle mediastinum. Various lymphatics जो trachea के नीचे सब carinal lymphatics are there. These are in the middle mediastinum, right? Anterior mediastinum में most important structure is thymus. Sometimes thyroid gland. Thyroid है तो उसके साथ parathyroid gland. Then there crosses the phrenic nerve anteriorly and vagus in the posterior mediastinum. Vagus and splanchnic nerve. Actually, splanchnic are part of sympathetic nervous system. I am telling you that just the most important things, right? तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, उसमें से क्या क्या ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे जो सुपीरियर मेडियास्टिनम है उसमें से आर्च ऑफ एर्टा जा रही है. आर्च ऑफ एर्टा की 3 ब्रांचेस भी जा रही हैं, सबक्लेवियन, ब्रैकियोकेफालिक एंड कॉमन कैरोटिड. तो इस तरीके से मेडियास्टिनम हमारा कवर हो गया. अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी मैलिग्नेंसी किस मेडियास्टिनम में हो सकती है, ठीक है? तो अब आपने देखा कि थाइमस जो है वो सुपीरियर में भी है और एंटीरियर में भी है. क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझ. पहली चीज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. A young woman or a boy presenting with anterior mediastinal mass in the CT scan. So, what are your differentials? When you know the structures, then you know the differentials, right? और अगर कोई स्ट्रक्चर मल्टीपल मेडियास्टिनम के पार्ट इन्वॉल्व कर रही है
ठीक है, सो वी विल कवर इट बाय पार्ट. फर्स्टली एंटीरियर मेडिएस्टिनम. Anterior mediastinum has thymus. There can be thymoma. There can be thymic carcinoma, which can present as anterior mediastinal mass. Second is germ cell tumors. During the development, जैसे आपने देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, थाइमस की एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. ये सारे ऑर्गन्स जो बनते हैं वेरियस आर्चेस से, वो ऐसे डिसेंड करते हैं यहाँ पर. तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसलिए जर्म सेल ट्यूमर्स एंटीरियर मेडिएस्टिनम में आते हैं और यंग एज में प्रेजेंट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं एक एज के बाद. जैसे जर्म सेल ट्यूमर हमेशा यूजुअली जैसे ही एडोलिसेंट और एडल्ट वाली जो एज आती है जैसे ही वैसे ही ग्रो कर जाते हैं. तो उसका एक पीरियड होता है क्योंकि वो मैच्योर एनफ नहीं हो पा रहे हैं. जब उनका टाइम आया है कि मैच्योर होना है तो वो उनकी लोकेशन ही गलत है, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट है जिस वजह से वो एंटीरियर मेडिएस्टिनल मास की तरह ग्रो करेंगे. ठीक है. थर्ड वन इज लिम्फोमा. लिम्फोमाज वैसे किसी भी मेडिएस्टिनम में हो सकते हैं, जहां लिम्फेटिक्स है वहां लिम्फोमाज है, बट मोस्टली एंटीरियर सुपीरियर और मिडिल मेडिएस्टिनम में लिम्फेटिक्स ज़्यादा होते हैं. पोस्टीरियर में इतने लिम्फेटिक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए लिम्फोमाज नहीं मिलते हैं. इस पोर्शन में आपको लिम्फोमाज मिलेंगे. राइट. सो थाइमोमा, जर्म सेल ट्यूमर, लिम्फोमा, और क्या हो सकता है आगे. समटाइम्स मैंने जैसे बताया कि थायराइड आ सकती है, तो गोइटर, अगर गोइटर का लार्ज मास होगा तो वो एंटीरियर मेडिएस्टिनम में मिलेगा. पैराथायरॉयड एडिनोमा, अगर किसी की एक्टोपिक पैराथायरॉयड है, सो देयर कैन बी पैराथायरॉयड एडिनोमा इन द एंटीरियर मेडिएस्टिनम. गोइटर भी एक्टोपिक प्रेजेंस शो करेगा ना थायराइड की. हाँ, वो जब नीचे डिसेंड करेगा. ठीक है. तो एंटीरियर मेडिएस्टिनम में ये सारी स्ट्रक्चर आ गया. और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है ना. नहीं, डिसेंडिंग ऐसा कुछ वो नहीं बताया है. फिर हम पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम की बात करते हैं. पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में आपने देखा ईसोफेगस जा रही है, तो कोई ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होते हैं न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए न्यूरोब्लास्टोमा. अगर एंटीरियर मेडिएस्टिनम है तो 2-3 डिफरेंशियल हैं जो आपके दिमाग में आएंगे. सिंपल थाइमोमा, थाइमिक कार्सिनोमा, थाइमस का कुछ है, जर्म सेल ट्यूमर एंड लिम्फोमा. 3 याद रख लो. अगर कोई प्रेजेंट करता है आपके पास एंटीरियर मेडिएस्टिनल मास के साथ तो 3 डिफरेंशियल. ठीक है. पोस्टीरियर मेडिएस्टिनल मास के साथ कोई आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोब्लास्टोमा, अगर वो बच्चा है चिल्ड्रन एज में, न्यूरोब्लास्टोमा पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में ही प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे स्प्लेंचनिक नर्व जा रही हैं और सिंपैथेटिक चेन का ही जो है वो ट्यूमर है न्यूरोब्लास्टोमा, तो वो वहां मिलेगा. ठीक है. और ईसोफेजियल मिल सकता है. अब ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पोस्टीरियर में मिलेंगी. अब आ जाओ सुपीरियर मेडिएस्टिनम पे. ईसोफेगस, ट्रैकिया, ये सब आपके सुपीरियर मेडिएस्टिनम को भी क्रॉस कर रहे हैं. तो ईसोफेजियल कैंसर जो अपर थर्ड का है, वो ईसोफेजियल कैंसर सुपीरियर मेडिएस्टिनम में भी हो सकता है. ठीक है. और कोई खास, ट्रैकियल मैलिग्नेंसी कुछ इसमें. हाँ, मतलब कोई भी, ब्रोंकोजेनिक. हाँ, ट्रैकियल, ब्रोंकोजेनिक. अब ये जो ट्रैकिया और ब्रोंकोजेनिक है ना, ये दोनों मेडिएस्टिनम क्रॉस कर रहे हैं, मीडियल एंड सुपीरियर. तो जैसे कि कोई ब्रोंकोजेनिक, कोई सिस्ट हो गया, या फिर
लिम्फोमास हो सकते हैं। अब आप खुद सोचो, कोई हर्ट की कोई इटियोलॉजी होगी, कोई पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल सिस्ट है, वो सब मिडिल मेडिएस्टिनम में ही प्रेजेंट होगा। इवन यू कैन फाइंड द लंग कैंसर इन मिडिल मेडिएस्टिनम, क्योंकि ट्रैकिया के नीचे सब कैराइनल नोड है, फिर ब्रोंकस है, कोई पेरी हाइलर लीजन है लंग का, वो भी मिडिल मेडिएस्टिनम में आ सकता है, तो लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मेलिग्नेंसीज थी जो अलग अलग मेडिएस्टिनम वाइज आपको पता होनी चाहिए, और ये आप रेडियोलॉजिकली देखते हो। और फिर अकॉर्डिंगली वी गो फॉर द वर्कआउट। हाँ, तो आपके माइंड में पहले से बन जाता है कि यस दीज आर माय डिफरेंशियल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर जस्ट द टू थिंग्स, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये दो आप याद रख लो बस। एंटीरियर के अंदर थाइमस, थाइमिक कार्सिनोमास, जर्म सेल ट्यूमर, लिम्फोमास, और पोस्टीरियर के अंदर न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, न्यूरोब्लास्टोमास। दैट्स इट, दिस एंड्स आवर टॉपिक।